Hello everyone, Abu Tala this side. How are you doing and how your freelance going? I hope everything will be fine and I hope I am adding some values into your all sort of freelancing journey. I have made a lot of videos on each and every topic from why freelancing to picking a skill to learn those skills, how to get clients through LinkedIn or how to get clients as a general. I have shared my personal experience, my personal perspective on freelancing and on each and every topic. So if you want any more of them, then comment in comment section. I will be making those videos. Today we are going to discuss a very important topic. So my question is कि whatever you are doing right now, will you be doing for your whole life? Like suppose that daily उठना है और आपको वही वीडियो एडिटिंग करनी है और बस इस तरीके से आपकी ज़िंदगी चल रही है. आई एम नॉट गिविंग यू एनी सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन, आई एम गिविंग यू एन आइडिया कि इफ़ आई गिव यू अ चांस कि आप इस फ्रीलांसिंग जर्नी को आप अपने एक स्टार्टअप जर्नी में कन्वर्ट कर सकते हो, then how it would be. All right, so in this video we will be discussing the same. So time snaps are also given. You can jump to a certain part as well if you want. So the thing is कि आप सबसे पहले अपने आप को देखो कि what you do every day. I mean कि from approaching client to getting work and completing work and then getting payment. In this whole process, what you do? First of all, you approach client or a client approaches you by inbound leads, and then you get work, you close your deal, and then you complete that project, and then you get payment. So here also you will be doing the same but in a different way. Like you will approach client, or whenever any client approaches you, you will take that work, but here you will not be completing that project by your own. What you will do is कि there are lots of other freelancers who are not good at approaching clients or they are not getting clients. So what will you do is कि आप उस प्रोजेक्ट को जो है किसी फ्रीलांसर के हवाले कर दोगे, राइट, एंड यू विल कीप ओनली कमीशन. लाइक सपोज दैट प्रोजेक्ट ऑफ 100 रुपीज, तो आप क्या कर रहे होगे कि आप उसी प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर दोगे किसी एक फ्रीलांसर को जिसको खुद से क्लाइंट मिल नहीं पा रहे हैं और या फिर उन्हें कोई इनबाउंड लीड्स, उनके पास कोई जरिया नहीं है. तो आप क्या करोगे कि आप उस प्रोजेक्ट को किसी फ्रीलांसर के हवाले कर दोगे. तो आपके जो वो 100 रुपए की प्रोजेक्ट है उसमें से आप 80 या 70 आप दोगे फ्रीलांसर को एंड द रेस्ट यू विल कीप टू योरसेल्फ. All right, I know many of you are already aware of this idea, and I know many of you have already seen all those freelancers who have running their own agency. This startup will be called as a freelancing agency or a content creation agency or an ad agency, depends on what field you are choosing. Like if you know Ishan Sharma, he is running his own agency which is called Marketup. So what he does is he take project from other clients and then he hand over to different freelancers and he only keep commission. So he is working as a mediator of clients and freelancers, of them who has work and of them who is ready to work. All right, in this video we will be discussing what it takes to start your own freelancing agency, to start your own content creation agency. So the first thing you will be needed are clients. You will have to figure out how you can approach client and why client will agree to work with you. So for that you will be needed your branding. Like if you take an example of Ishan Sharma, what he do is कि he has his own YouTube channel, right? तो ये जो है वो अपने YouTube चैनल को ही एक अपना पोर्टफोलियो बना दिया है. Like whenever he approaches any clients, तो he show his own YouTube channel कि I have started my own YouTube channel and brought it to that position from scratch. So clients agree and clients trust him. तो अगर आप एक वीडियो क्रिएशन कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, यानी कि if you are interested in video editing and if you have many clients on video editing, then first of all you need to have a solid foundation, you need to have a solid portfolio. वो आपके Instagram पेज हो सकते हैं, वो आपका चैनल हो सकता है, या तो वो आपके LinkedIn भी हो सकते हैं अगर आप वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, और if you have a good connection and if you have a large audience. And the second most important thing that will be needed कि art of approaching, कि आप इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि इफ़ यू स्टार्ट अ फ्रीलांसिंग एजेंसी तो आपके पास क्लाइंट्स की कमी नहीं होगी. कहीं ऐसा ना हो कि यू हैव बिल्ड योर वेबसाइट, यू हैव हायर्ड फ्रीलांसर्स बट यू डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्लाइंट्स, देन व्हाट विल यू डू. तो ये चीज़ उन्हीं को स्टार्ट करना चाहिए जिनको क्लाइंट को अप्रोच करना आता है और जिनके पास देयर आर लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स और दे गेट अ लॉट ऑफ इनबाउंड लीड्स. एंड आई थिंक यू हैव फिगर्ड इट आउट कि इसमें जो है ना आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत है. इधर यू हैव वर्कड विद एनी फ्रीलांसिंग एजेंसी और इधर यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग ऑन योर ओन फॉर सेवरल ईयर्स. It means कि you have handled a lot of clients, you have handled a lot of projects at the same time.
क्योंकि ना व्हेन यू विल बी रनिंग योर ओन फ्रीलांसिंग एजेंसी, तो आपके पास कोई एक एक्टिव क्लाइंट नहीं होगा. एट द सेम टाइम यू विल बी हैंडलिंग 3 to 5 क्लाइंट्स. आपको हर क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना होगा. सो ऑल दोज थिंग्स दैट आई हैव डिस्कस्ड बिफोर आर दोज थिंग्स दैट आर नीडेड टू बी इन दैट पर्सन हु इज ट्राइंग टू build his own freelancing agency. Now let us discuss what are the steps you should take to start your own freelancing agency. All right, so starting from the first one, as I have told कि you will be needed a strong background, यानी कि एक मीडियम through which clients will trust on you and clients will rely. क्योंकि जब एज अ फ्रीलांसिंग एजेंसी आप किसी को अप्रोच करते हो ना, तो वो देखना चाहते हैं कि आपकी उस एजेंसी कितनी बड़ी है, आपके पास और कौन कौन से पहले के क्लाइंट्स हैं, उनके क्या क्या रिव्यूज़ रहे हैं यहाँ पर, और क्या आप रिजल्ट ला सकते हो उनके लिए. सो फॉर दैट आपकी एक इंस्टा पेज हो सकती है उस नाम की, आपकी एक चैनल हो सकती है यूट्यूब पर, या फिर आपकी एक वेबसाइट हो सकती है, या फिर आपकी ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, कि आपकी अगर एक वेबसाइट हो, वहाँ पर आपका पूरा मिशन, वहाँ पर आपका पूरा विजन, और वहाँ पर आपके अगर पूरे क्लाइंट्स और उनके टेस्टिमोनियल्स वहाँ पर अगर मौजूद हो, और क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो उनको, एंड हाउ यू कैन हेल्प देम ग्रो सो दैट इट विल मेक योर क्लाइंट ट्रस्ट ऑन यू. ऑलराइट, एंड देन योर टीम. और उसके पहले आप क्या कर सकते हो कि यू कैन फाइंड अ को फाउंडर, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग करते हो तो कोर वर्क्स को अकेले संभालना काफी मुश्किल होता है. तो आई विल रिकमेंड यू कि फर्स्ट फाइंड अ को फाउंडर, और 2 लोग या 3 लोग साथ में मिल करके आप स्टार्ट करोगे तो क्लाइंट्स को अप्रोच करने में आसानी होगी. एक बंदा जो है वो वेबसाइट पे काम संभाल रहा होगा, फिर एक बंदा जो है वो कोल्ड मेलिंग कर रहा होगा, एक बंदा जो है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव रहेगा और फिर वहाँ पे आपकी ब्रांड को बिल्ड कर रहा होगा. The next step will be के build connections with different freelancers and then interview them and then hire them. अब हायर करने का बहुत सारा तरीका है. आप जो है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख सकते हो कि जब अगर आपके पास काम होगा और पर प्रोजेक्ट उनको आप पैसे दे रहे होगे, और या फिर आप उन्हें फुल टाइम या पार्ट टाइम उन्हें मंथली बेसिस पर आप पे कर रहे होगे. एंड देन आफ्टर बिल्डिंग द होल सिस्टम यू विल स्टार्ट अप्रोचिंग क्लाइंट्स, यू विल बी फाइंडिंग वर्क्स. और अगर आप एक एक्टिव फ्रीलांसर हो तो आपके पास एक नए क्लाइंट्स होंगे जरूर, तो आप उन्हीं एक्टिव क्लाइंट्स को जो है ना आप एक ऑफर कर सकते हो कि वी आर स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग एजेंसी, और आप उनको जो है वही सेम प्रोजेक्ट जो है वो कम पैसे में करके दोगे, और आप उनसे ये कहोगे कि गिव मी अ डिटेल रिव्यू एंड आई विल बी पुटिंग योर दिस रिव्यू और टेस्टिमोनियल ऑन माई वेबसाइट. और फिर you will ask them to promote word of mouth and referral. So it is a very basic thing and it has a very basic system, but if you do it consistently you will having a great opportunity to work on your own startup, to convert your current journey to a startup journey. और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की बात नहीं होती है, और इसमें कोई लॉस की भी बात नहीं होती है, क्योंकि आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप कर रहे होगे अपने वेबसाइट के ऊपर, आप एक डोमेन खरीदोगे और फिर एक विक्स की टेम्पलेट लोगे, या फिर आप वर्डप्रेस से, या फिर अगर आपको खुद कोडिंग आती है तो आप खुद कोड करके आप एक पूरी वेबसाइट तैयार कर लोगे. एंड देन आफ्टर दैट जब क्लाइंट मिलेंगे तब आप उन फ्रीलांसर को पे करोगे, जब क्लाइंट नहीं होंगे तो उन फ्रीलांसर को आप पे नहीं कर रहे होगे. सो देयर विल बी नो लॉस एंड देयर विल बी नो और वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट. सो इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, इफ यू आर इन योर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, देन यू कैन स्टार्ट दिस. और या तो आप खुद के फ्रीलांसिंग जर्नी के साथ साथ भी आप इसको कर सकते हो. अगर आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आने लगे तो आप उन्हीं के काम को जो है वो आउटसोर्स कर दोगे with different freelancers and you will keep the commission. So don't start this with the motivation of money, but start with the motivation of getting experience, because you will be working on your own company. All right, so I hope it helped you and I hope you have got my points. Still, if you have any query then you can comment. I will try to answer you. Till then, keep exploring and have a good day.